السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام مہمان خصوصی حضرت علامہ مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور عزیز نوجوان حافظ خان اسد اور احسن رضا، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹی سعید الدین صاحب، سیکریٹری قمر زمان منہاج صاحب، دیگر معزز ٹرسٹیز اور ائمہ حضرات، اساتذہ کرام اور مختلف دینی تنظیموں کے رہنما، اللہ نے اپنے گھر کی شان اور عظمت کے لیے ان گھروں کے اندر جو اللہ کی طرف جن کی نسبت ہے، اپنی کتاب قرآن کریم کی تعلیم و تدریس کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ جو ان گھروں اور مساجد کی آبادی کا تا قیام قیامت ذریعہ ہیں۔ پروگرام ہمارا تذکرہ خیر الورا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام ختم قرآن کا بھی شامل کر لیا، چونکہ قرآن کریم اور آقا نامدار کا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن کریم کا، اس کی کسی آیت کا، اس کے کسی پروگرام کا، اس کے کسی فرمان کا، اس کے کسی پیغام کا ذکر ہوگا تو اس کی عملی صورت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آج میرا آپ کا قرآن پڑھنا، میرے اور آپ کے بچوں کا قرآن پڑھنا اس وجہ سے ہے کہ آقا انعامدار نے جو قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم دیا، اس کو یاد کرنے کا شوق دلایا، وہ قیامت تک قائم رہے۔ اور دراصل یہ جتنے حفاظ ہیں یہ آقا انعامدار علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا سب سے پہلا حافظ اس دنیا میں آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آسمانوں پہ جبرائیل ہیں، لیکن دنیا کے اندر سب سے پہلا حافظ اگر کوئی ہے تو وہ آقا انعامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کو محفوظ بھی ہم ہی رکھیں گے۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا اہتمام اس طرح کیا کہ اس کی حفاظت 10 چیزوں کی حفاظت جو میرے ذہن میں آ سکیں اس کا اہتمام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو محفوظ کیا، ہم نے دیکھا قرآن کا متن محفوظ ہو گیا، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، اس کے زبر بھی محفوظ، اس کی زیریں بھی محفوظ، اس کے پیش بھی محفوظ، اس کے الف با سے لے کے یا تک سارے حروف بھی محفوظ، اس کی تحریر جس انداز سے یہ لکھا گیا وہ بھی محفوظ، نہ اس کے زبر زیر میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس کے حروف میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اللہ نے جیسے آسمان سے آقا انعامدار کے دل پر اس کو اتارا، آقا انعامدار نے صحابہ کرام کو یہ بتایا اور صحابہ کرام نے امت کو بتایا، اور آج ہمارے پاس یہ موجود ہے، تب سے لے کے آج تک یہ قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں۔ تورات کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، انجیل کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں کہ انجیل موجود ہے، مگر جو انجیل موجود ہے، یہ اناجیل اربع جس کو کہتے ہیں، ان اناجیل کا جو آج اوریجنل سورس ہے، وہ اوریجنل سورس دراصل ترجمہ ہے۔ وہ ترجمہ کس نے کیا معلوم نہیں، پورا کیا نہ یا ادھورا کیا معلوم نہیں، کس صدی میں کیا معلوم نہیں۔ جس نے ترجمہ کیا
उसका हजरत ईसा के साथ मिलना, मुलाकात साबित नहीं। उसने किसी हजरत ईसा के दौर की जबान में जो लिखे हुए हजरत ईसा के इरशादात थे उसका तर्जमा किया, आज वही चल रहा है, लेकिन कुरान की ये बात नहीं। एक मिसाल दे के मैं आगे बात बढ़ाता हूं। कुरान करीम के अंदर एक आयत है, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। बिअयदिन ये एक या पढ़ी जाती है, लेकिन जब कुरान करीम आप खोलेंगे तो आप देखेंगे 2 या लिखी हुई हैं, हालांकि पढ़ी एक जाती है, एक या पढ़ी जाती है। तो ये 2 या जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखवाई, हजरत ज़ैद इब्न साबित ने जो मुरत्तब किया नुस्खा, उस दौर के अंदर जो लिखा गया आज तक वो महफूज है। 14 सदियां गुजर गई, मुख्तलिफ कौमों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ जबानों के अंदर कुरान करीम के तराजिम भी हुए और असल टेक्स्ट भी लिखा गया, लेकिन उसको ना आज तक कोई बदल सका है, ना क़यामत तक कोई बदल सकेगा। पढ़ने में 1 या है, लिखने में 2 या है, और कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जो 2 दफा पढ़े जाते हैं, लिखने में 1 दफा है। 17वें पारे के अंदर आता है, वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। नुनजिल छोटा नून लिख दिया जाता है, हालांकि लिखा हुआ 1 है। अगर आज कोई कातिब कहे कि नहीं मैं इसको 2 लिखूंगा, 2 नून नहीं लिख सकता। अल्लाह ने इसके मतन को महफूज किया है। अगर कोई लिखेगा वो गलती होगी। पढ़ने में 2 नून होंगे, लिखने में 1 है। अल्लाह ने मतन को महफूज किया है। ये पहली चीज, अल्लाह ने इसके माने और मफहूम को महफूज किया है। इसकी अमली सूरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो करके दिखाई वो आज तक महफूज है और क़यामत तक महफूज होगी। हत्ता कि एक मिसाल दे के आगे चलूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई गुफ्तगू करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो जो इशारा आप करते हैं उन इशारों को भी सहाबा किराम ने महफूज किया और ताबईन तक पहुंचाया, तब ताबईन तक पहुंचा, फिर मुहद्दिसीन ने अपने किताबों के अंदर जिक्र किया, और फिर जो हदीसें आगे वो पढ़ाते गए। जो अल्लाह के रसूल ने वो एक्शन किया था वो भी उम्मत को, अपने शागिर्दों को बताते गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान करते वक्त यूं फरमाया था। इस तरह की अहादीस को अहादीस मुसलसल कहते हैं। और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्शन ये भी था कि अगर कोई शख्स कोई गुनाह करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। हुजूर ने अपनी उंगलियों के अंदर उंगलियां की और निकाली, कहते इस तरह जिस तरह ये उंगलियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो आज वो हदीस जब कोई मुहद्दिस बयान करता है तो फिर उसी तरह करके दिखाता है जिस तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया। तो हुजूर की ये अदा भी आज तक महफूज है, मतन भी महफूज, माना और मफहूम भी महफूज, और तामुल भी महफूज। अकीमुस सलात का लफ्ज कुरान में 12 आया। आप पूछिएगा इन बच्चों से कितनी दफा आया, ये बताएंगे, लेकिन नमाज में हाथ कहां तक उठाने हैं, रकू, सजदा, अत्तहियात किस तरह बैठनी है, कुरान में इसका जिक्र नहीं। लेकिन हुक्म अकीमुस सलात का आया कुरान में, और उसकी अमली सूरत करके दिखाई आका इनामदार ने, और क़यामत तक उम्मत के अंदर वो कुरान करीम के हुक्म की अमली सूरत कायम रही। इसलिए कि जो हुजूर ने करके दिखाया और उम्मत को कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम भी उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता देखो। अल्लाह ने कुरान की बरकत से हुजूर के इस अमल को क़यामत तक के लिए भी महफूज कर दिया। मतन भी महफूज, माना और मफहूम भी महफूज, तामुल भी महफूज, और सियाको सबाक भी महफूज। सियाको सबाक कि किस माहौल में कुरान करीम ये नाजिल हुआ, ये आयत किस माहौल में नाजिल हुई। जंग का था, अमन का था, दिन का था, रात का था, सर्दी का मौसम था, गर्मी का मौसम था, मक्का की सरजमीन थी, मदीना की सरजमीन थी, मस्जिद का माहौल था, घर का माहौल था, हुजूर बैठे थे, हुजूर लेटे हुए थे, हुजूर सवारी पे थे, हुजूर मस्जिद के अंदर थे। क्या कैफियत थी, एक एक चीज महफूज कर दी गई। किस तरह कुरान करीम उतरा है, क्या अंदाज होता था, अल्लाह ने उसको भी क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। कुरान महफूज है लेकिन सियाक़ व सबाक़ भी महफूज है। और फिर उसके साथ साथ
जिन सहाबा ने हुजूर से कुरान सुना, अल्लाह का फरमान सुना, उन सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअल्लिक़ा जितने अफराद थे उनको भी तारीख में महफूज कर दिया। इल्मुल अंसाब एक मुस्तकिल इल्म है और ये सब का सब घूमता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द, और दुनिया में किसी और इंसान का नसब इस तरह महफूज नहीं होगा जिस तरह आका इनामदार का महफूज है। और मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग यहां पे बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपके दादा का क्या नाम था, आप में से अक्सर बता देंगे कि मेरे दादा का क्या नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपके दादा के दादा का क्या नाम था, कोई है जो बता सके? दादा के दादा का नाम? यहां एक हाथ भी नहीं उठा, बात खत्म। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा के दादा के दादा के दादा अदनान तक तो किसी का इख्तलाफ नहीं, नसब महफूज 35-36, और हत्ता कि हजरत आदम तक। मुल्ला तारिक जमील पिछले दिनों आए थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हजरत आदम तक पढ़ के सुनाया था। अल्लाह ने आका इनामदार के साथ निस्बत रखने वाले एक एक फर्द को भी, उसके नाम को, उसके नसब को, उसके किरदार को महफूज कर दिया। हुजूर के दादा, हुजूर के नाना, नाना के नाना, और फिर हुजूर की फूफियां, हुजूर के चचा, हुजूर की बेटियां, बेटियों की औलाद, ये सब का सब महफूज हो गया। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां कुरान को महफूज बनाया, हामिल कुरान को भी महफूज बना दिया, उसकी सीरत को भी महफूज बना दिया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से और आप पर कुरान के नुज़ूल की वजह से आपकी पूरी सीरत महफूज हो गई, और आपकी वजह से आपके सहाबा की जिंदगी, 15,000 सहाबा किराम के तज़किरे आज मौजूद हैं जिनके मुतालिक तफसीलात हैं। सहाबा तो रिवायात के अंदर आता है हज्जतुल विदा के मौके पर 1 लाख से ज्यादा तादाद थी, लेकिन जिनकी मुकम्मल तफसील मौजूद है, जिस किसी सहाबी ने हदीस को आगे रिवायत किया, उसका पूरा नसब, उसका खानदान, उसका किरदार महफूज हो गया। और इस तरीके से उलमा ने लिखा है कि 6 लाख इंसानों के किरदार, अखलाक, उनके आदात और उनकी मुकम्मल तफसील महफूज हो गई। यह कुरान और साहिब कुरान की बरकत से, अल्लाह ने इसकी बरकत से इंसानों को महफूज किया, उनके किरदार को महफूज किया और उलूम को महफूज। 750 उलूम ऐसे हैं उलमा ने गिनवाए हैं जो बिलवास्ता या बिला वास्ता कुरान और साहिब कुरान से मुताल्लिक हैं। 750 उलूम जो कुरान और साहिब कुरान से मुताल्लिक हैं, अल्लाह ने इनको भी, उनकी भी हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से हमें और आपको भी महफूज बनाया। मेरे और आपके चेहरे पे अगर दाढ़ी है तो ये भी बरकत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आज ईसाई पूछते तुम दाढ़ी क्यों रखते हो, अक्सर सवाल करते हैं, बहुत सारे यहाँ का माहौल ऐसा है। लेकिन मैं कहता हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तस्वीर तुम पेश करते हो, जो मुजस्मे तुम उनके बनाते हो, उस पर दाढ़ी है कि नहीं? मगर इनमें से किसी राह बिशप की आप दाढ़ी दिखा दो, नहीं मिलेगी, सिवाय ऑर्थोडॉक्स रशिया वाले ईसाइयों के या अरब के जो ईसाई हैं वो दाढ़ी रखते हैं, बाकी पूरी दुनिया के अंदर आपको दाढ़ी नहीं मिलेगी। आका इनामदार ने अगर एक सब्जी पसंद की तो हमने उलमा को देखा कि वो सब्जी शौक से लेते हैं, हमने सुलहा को देखा वो सब्जी इसलिए खाते हैं कि आका इनामदार को ये महबूब थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर सफर हज पे जा रहे हैं और सफर हज पे जाते वक्त नाबीना हो गए, आखिर उम्र के अंदर बीनाई जाती रही, लेकिन खादिम साथ है, एक जगह अपने खादिम से कहा ऊंटनी रोको, मैं उतरता हूं। उतरे और एक जगह जाके बैठ के वापस आ गए। खादिम ने देखा वापस आ गए हैं लेकिन कोई क़ज़ाए हाजत नहीं हुई, तो पूछा खैरियत है, तबीयत ठीक है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि देखिए, मैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र हज पे गया था तो मैंने यहाँ देखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे उतरे थे और क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं भी सफ़र हज पे जा रहा था, मैंने कहा हुजूर की सुन्नत को पूरा कर दूँ। ये था वो ताल्लुक़ अल्लाह के पैगम्बर के साथ और ये दीन और सुन्नत की हिफाजत। तो उसी सुन्नत को